Dear students of BTech, second year civil branch, I am Dr. Arvind Parsai, Associate Professor of Mathematics. I welcome to you for today's second lecture on unit number 5. After 7 to 8 minutes, I will start the today's session based on the binomial probability distribution. Pratham, Gaurav Chauhan. Himanshu Gate. After 7 minutes, I will start the session. How are you, Himanshu Gate? फाइन सर। स्टडी चालू कर दीजिए क्योंकि आपका एमएसटी सेकंड आ गया है। टैबिट चॉइस 25 को होने वाला है ऑनलाइन। पहले फर्स्ट एमएसटी के पैटर्न में थर्ड और फोर्थ यूनिट कवर होगी। पढ़ाई शुरू कर दीजिए, नोट से, पीपीटी से, वीडियो लेक्चर से, जो भी सोर्स यूज करना चाहें, ताकि सेकंड एमएसटी में आपको अच्छे नंबर आए। रोल नंबर 20 सुमित पर्वते। और टेकन यू आर अटेंडेंस सुमित पर्वते, राजा मुकाती, प्रथम, हर्षित, okay, Sirvit, or taken your attendance. Your roll number is 50, not 59. Shivam, Gaurav Chauhan, Shreyans, Shivam, Shreyans, Shiva Solanki. Morning, good morning. Very good morning, Shreyans. How are you? Fine. 28. Okay. Shivam Tiwari, 48. Shiva Solanki, Chauhan, roll number 56. Gaurav Chauhan, you are attendance. I have taken roll number 15 and 50 also. Vishnu Chauhan also taking attendance. Arlene, roll number 18. Sagar Padidar, 42 and 26. Ah,
53. Sasank Parne and 29. Where is Sachin Parne? Pradeep Jadhav. Pooja. Solanki. Guys, only 2 minutes remains. Then we start our session today based on our first discrete probability distribution known as binomial probability distribution. Harpreet Verma, rule number 7. Very interesting probability distribution and useful also of day-to-day life. Harpreet Verma has taken your attendance. Yes, sir. I have taken your attendance. You are showing your name on screen. Sachin Pandey. Of course, Pradeep Jadhav, I have taken your attendance. Okay, my dear students, I'm going to share the screen today. My dear students of BTech second year civil branch, I am Dr. Rohit Parsai, Associate Professor of Mathematics in Engineering Science Humanity Department at Chalmidevi Group of Institution, Indore. I welcome to you on our second lecture, unit number 5, as the probability distribution. So first one is discrete distribution, in which we have to study. First one is binomial distribution, and later on in tomorrow lecture I will study the one more discrete probability distribution, which is known as the Poisson distribution, and after that we study in the same chapter the normal probability distribution. Rashnikant 30. Okay, so I have been explaining you in a previous class what to mean by random variables and what to mean by the category of the random variables. As per the discrete value, we use discrete distribution as discrete random variables, and for non-discrete values, that is for all real values, we are using the continuous probability distribution, which is called as continuous random variables. So I once again we call here what to mean by theoretical distributions, when frequency distribution of some universe are not based on actual observation or experiment, but can be derived mathematically from certain predetermined hypotheses
then such distribution are said to be theoretical distribution. So the types of distribution theoreticals are based on following two types of theoretical distribution are usually used in statistics. फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हमारे सामने दो कैटेगरी आएगी, एक होगी बाइनोमियल और फिर इसके बाद इसका जो लार्ज वर्जन है जिसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है, जिसको पॉइजन नाम का एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम पॉइजन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, इसको अपन कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है या सिंपली शॉर्ट में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं कई एग्जामिनर्स। सो उनमें से आपके जो सिलेबस में इस यूनिट पे रखा है वो है फर्स्ट वाला जिसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं और एक दूसरा है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे होते बहुत सारे हैं कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अलग अलग तरीके से हम लोग इनको डिफाइन करते हैं और उनका एप्लीकेशन भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आपके सिलेबस में M3 में एक तो नॉर्मल है और दूसरा एक्सपोनेंशियल है जो आपको इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में आएगा यूज इन सभी का। तो इसलिए हम लोग इनका क्या मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो हम आने वाले समय में इस चैप्टर के थ्रू सीख रहे हैं, समझ रहे हैं वो सारे मैथमेटिकल टूल्स। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, जो आज हमारा लेक्चर इसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस्ड है। फिर हम कल की क्लास में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे और टाइम मिल गया तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखते जाइए, समझते जाइए। सबसे पहले बात यह आती है कि सर हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्यों पढ़ रहे हैं। सभी के दिमाग में ये क्वेश्चन होना चाहिए इंजीनियरिंग स्टूडेंट के कि भाई कोई भी चीज पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं टॉपिक्स, तो उसके पीछे कुछ ना कोई राज होगा, तभी हम इस चीज को पढ़ रहे हैं। वो राज इस तरह से है कि जब हमारे पास कोई एक इवेंट है जिसको हम लोग एक बार करते हैं, दो बार कर रहे हैं तो काम बन जाता है, हमें वैल्यूज मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, उसको हम उसकी आउटकम्स को हम निकाल सकते हैं आसानी से, जो अभी तक हमने पिछली क्लास में समझा है उसकी जो बेसिक थ्योरी प्रोबेबिलिटी की। लेकिन ये जो बेसिक थ्योरी है प्रोबेबिलिटी की वो फेल हो जाती है जब हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है, लार्ज हो जाती है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना होता है जिसको अपन एडवांस प्रोबेबिलिटी थ्योरी कहते हैं। तो ये है एडवांस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट, जिसको बाइनोमियली एक्सप्लेन किया गया है, बाइनोमियल थ्योरम के पैटर्न का है, इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम बाइनोमियल हो गया है। सो इसको हम समझ रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में वो है if the probability of success of an event in a single trial is p, so that the probability of failure is 1 minus p। टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होती है और फेल्योर की प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है तो वो हो जाएगी 1 माइनस p। देन द प्रोबेबिलिटी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसको अपन स्मॉल p से डिनोट कर रहे हैं, ऑफ एग्जैक्टली x सक्सेस और r सक्सेसेस ऑफ द इवेंट इन n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स को हम लोग गणित की भाषा में ट्रायल्स बोलते हैं और टेक्निकल भाषा में हम लोग इसको ऑब्जर्वेशंस बोलते हैं। जब हमारे सामने एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस हो तब उस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना एग्जैक्ट सक्सेस की नॉर्मल तरीके से संभव नहीं हो पाती है। शशांक पांडे, गौरव पांडे, इसलिए हम लोग इस प्रॉब्लम को, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस मेथड से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला है जो आपके सामने नेक्स्ट स्टेप में आ रहा है, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, जिसको P का मतलब है प्रोबेबिलिटी फॉर एग्जैक्टली x सक्सेस और R से डिनोट करें, जिसको हम लोग डिटेल्स में इस तरह से डिनोट करते हैं। कुछ एग्जामिनर B ऑफ x स्लैश n कॉमा p, n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स और p का मतलब है सिंगल ट्रायल की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो मैं आपको ऊपर ही यहाँ पर बता चुका हूं। और इसका फॉर्मूला होता है NCX
NCX मतलब बाइनोमियल कॉम्बिनेशंस। सो NCX की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस x इंटू फैक्टोरियल x p रेस टू x इंटू q रेस टू n माइनस x फॉर x इक्वल टू r इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू n। आपको जितने टाइल्स दिए हो उतने टाइल्स के लिए आप उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, उसकी संभावना निकाल सकते हैं कि हेड आने की संभावना कितनी होगी, टेल आने की संभावना कितनी होगी। ये सारी चीजें हम इससे बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक इजी सोर्स है प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये बेसिक फॉर्मूला आप सभी को याद रखना होगा ना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का। बहुत सिंपल है, इतना कोई कठिन नहीं है। अब हमने यहाँ पर फैक्टोरियल वैल्यूज को डिफाइन कर रखा है, फैक्टोरियल फंक्शन की वैल्यू को बता रखा है। फैक्टोरियल फंक्शन क्या होता है, जो आपको मैंने इस चैप्टर के इस यूनिट नहीं, इस मैथमेटिक्स के M3 के फर्स्ट यूनिट में भी बताया था। सो n इंटू n माइनस वन, n माइनस टू अप टू 2 इंटू 1, देयर आर n फैक्टर्स। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। क्योंकि हमारे सेकेंड ईयर में कुछ लेटर एंट्री के स्टूडेंट भी आते हैं जिन लोगों का मैथ्स के साथ जो लगाव है दूर हो जाता है, इसलिए उन सबको रिकॉल करने के लिए मैंने ये फॉर्मूले भी आपके सामने सभी के सामने रख दिए हैं, लिख दिए हैं कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, शशांक पांडे एंड सचिन पांडे, आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यस सर। आ रहे हैं हमें आपके सामने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सक्सेसेस ऑफ 5 ट्रायल्स व्हेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.3। इसका मतलब सिंगल ट्रायल की आपके सामने प्रोबेबिलिटी दे रखी है जो कि 0.3 है, और आपको 5 बार ये संभावना मतलब 5 बार इस एक्सपेरिमेंट को करना है, मतलब ऑब्जर्वेशंस करना है। ये आ रहा आपके सामने इसका कैलकुलेशन, p ऑफ x इक्वल टू 2, एग्जैक्टली 2 सक्सेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर r की वैल्यू मतलब x की वैल्यू 2 हो गई। आपके फार्मूला के हिसाब से टोटल ट्रायल की संख्या मतलब n की वैल्यू 5 है, तो ये हो जाएगी फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 0.3 की पावर 2। और जो फेल्यूर होगी उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, एक में से 0.3 घटा दोगे शशांक तो आपको क्या मिलेगा, 0.7 मिलेगा। तो इसकी पावर में इन दोनों का डिफरेंस आता है 5 माइनस n माइनस x, n मतलब 5, x मतलब 2, तो 5 माइनस 2। अब सॉल्व कर लीजिए। ये आपके सामने फैक्टोरियल नोटेशन को ओपन किया है मैंने, क्योंकि फैक्टोरियल 3 डिनोमिनेटर में आ रहा है और ये से कट जाएगा फैक्टोरियल 5 को, इसलिए अपन ने ओपन कर दिया रिडक्शन फॉर्मूले से। 5, 4 एंड 3 पे बंद कर दिया, मतलब क्लोज कर दिया, ताकि फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाए। और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 होती है, 2 से अपन 4 को काट देंगे, 2 2 4 होता है, और 5 दूना 10 होता है। और इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई करके आप इस क्वेश्चन का, बेसिक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ना केवल इस क्वेश्चन का, और भी इस तरह के जितने क्वेश्चन अराइज होंगे उन सब का आप लोग आंसर दे पाएंगे आज के बाद। कुछ लोग 12th क्लास में ही इस थ्योरी को, जो आईआईटी की तैयारी करते हैं उनमें भी इस तरह के कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उनको सॉल्व करने के लिए कुछ लोग पहले से ही 12th क्लास में इस डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ लेते हैं, कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए राजीव गांधी ने आपको इस सिलेबस में, M3 के सिलेबस में रखा है, ताकि आगे आपको समस्या नहीं आए। आगे बढ़े, शशांक पांडे, सचिन पांडे, प्रदीप जाड़ो। इस स्टेप में इस डिस्ट्रीब्यूशन को, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को समझने में कोई तकलीफ? अब हम कुछ नोट इसके बारे में आगे के स्टेप में आपके सामने बताएंगे, मतलब नोट मतलब ऑब्जर्वेशंस बताएंगे जो हमारे इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के, जो आपको एमसीक्यू में कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगी आपकी, भले कैंपस इंटरव्यू हो या
मैथ से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू होगा तो उससे रिलेटेड आपको इस तरह के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिनका आप कुछ सेकंड में आंसर दे सकते हैं। ऐसे पॉइंट दिमाग में याद रख सकते हैं। द प्रोसीजर हैज ए फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये बात मैं आपको इसके शुरुआत में कह चुका हूं बेटे। एन की वैल्यू फिक्स होती है जो पहले से डिसाइडेड होती है। क्योंकि एन की संख्या लार्ज हो गई है इसलिए हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इस एडवांस टेक्निक्स को, प्रोबेबिलिटी निकालने की एडवांस टेक्निक्स को अडॉप्ट करना पड़ रहा है। नहीं तो नॉर्मली हमारा प्रॉब्लम उससे हो जाता। फिर इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट आ रहा है, आपके सभी की नजरों के सामने दिख गया है, द ट्रायल्स मस्ट बी इंडिपेंडेंट। बहुत छोटा सा आपके सामने आंसर है। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बताइए जो ट्रायल्स होते हैं, ऑब्जर्वेशंस होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं कि इंडिपेंडेंट होते हैं। तो आपके लिए करेक्ट आंसर होगा इंडिपेंडेंट। ट्रायल्स किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। या तो कोई क्वांटिटी डिपेंडेंट होती है या इंडिपेंडेंट होती है, इसके अलावा जिंदगी में और कोई चीज होती नहीं है। ठीक है, ये दो बात इस तरह से हम लोग कहते हैं। वेरिएबल के बारे में भी हम यही कहते हैं, वेरिएबल यदि एग्जिस्ट करता है तो या तो वो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। कोई आदमी एग्जिस्ट करता है तो या तो डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा। अभी आप सभी लोग, कुछ लोग अपने पैर पे खड़े हो गए हैं तो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, कुछ लोग अभी अपने पैर पे खड़े नहीं हुए हैं, वो क्या है, डिपेंडेंट है। So each trial is in one of the two mutually exclusive categories. बात को थोड़ा और एडवांस कर रहा हूं आने वाले समय में, अगले वाली स्टेप्स में। Each trial is in one of the two mutually exclusive categories. कहने का मतलब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कि जब हम एक से ज्यादा ट्रायल की बात करते हैं तो वे आपस में एक दूसरे पर डिपेंड किसी भी कीमत में नहीं करते हैं। जैसे अपन कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या हेड आने वाला क्या टेल को बता देता है कि हाँ भाई तेरे को हेड आना है, अब मैं टेल आ रहा हूं तो तू हेड आ। ये एक दूसरे में प्योरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, कैटेगरी होती है। नेक्स्ट पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में हो सकता है। The probabilities remains constant for each trial. प्रत्येक ऑब्जर्वेशन में जो प्रोबेबिलिटी होती है वो एक कांस्टेंट होती है, मतलब फिक्स होती है। सिंगल ट्रायल की प्रोबेबिलिटी जो है बेटे पूरे समय में एक ही रहेगी, ये कहने का मतलब है इसका। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। अब आ रहे हैं हम लोग इस बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने का। कभी कभी एग्जामिनर न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं पूछे, इस तरह का थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछे तो आपके सामने इस तरह का थ्योरेटिकल डेरिवेशन पूछ लेता है, जो कि अभी इसी साल में जो ओपन बुक के फॉर्म में एग्जाम हुई थी उसमें इस पर क्वेश्चन पूछा था कि बताइए मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। यदि मीन को समझ लोगे तो वेरिएंस को अपने आप निकाल सकोगे। आ रहे हैं हम लोग गाइस इसके ऊपर, इसी तरह का कैलकुलेशन हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में भी करेंगे, जिसका बेसिक फॉर्मूला होता है मीन का, जिसका सिंबल होता है ग्रीक लेटर म्यू। समेशन एक्स एज ए रैंडम वेरिएबल है और पी ऑफ एक्स मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल है। ये मीन निकालने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बेसिक फॉर्मूला होता है। अब हमें चूंकि बाइनोमियल के लिए बात कैलकुलेट करना है तो हम बाइनोमियल के लिए वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जिसको पी ऑफ एक्स अभी हमने आपके सामने पिछले स्लाइड में डिफाइन किया है। एक्स रैंडम वेरिएबल है, एनसीआर या एनसीएक्स, जो कि अपन ने रैंडम वेरिएबल को एक्स की बजाय आर की वजह एक्स से डिनोट किया तो हो गया एनसीएक्स पी की पावर एक्स इंटू क्यू की पावर एन माइनस एक्स। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। ये आपके सामने दूसरी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जिस आप डिस्ट्रीब्यूशन का मीन कैलकुलेट करना चाहते हैं उस केस में क्या प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को हमने यहां पर रखा है, सब्स्टिट्यूट किया है।
यहां तक कोई शक? प्रदीप जाडू, शशांक पांडे, सचिन पांडे एंड खुशी शर्मा, कर्तव्य चौहान। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके समेशन के साइन को ओपन करना है। समेशन की लिमिट यदि हम नहीं दिए इसका मतलब स्टैंडर्ड n बराबर 0 से इंफिनिटी होती है। हाफ ऑफ द रियल लाइंस मैंने आपको कल बताया था जब नेक्स्ट क्लास प्रीवियस क्लास में कि रैंडम वेरिएबल की जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसकी रेंज क्या होती है। सचिन पांडे जरा बताओ, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की रेंज क्या होती है बेटे? पिछली क्लास में बताया था मैंने, n बराबर 0 से x बराबर 0 से इंफिनिटी। ठीक है, x बराबर 0 से इंफिनिटी, Yes. हाफ ऑफ द रियल लाइन। ओके, और कंप्लीट रियल इंटरवल्स, रियल लाइन मतलब माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जो है वो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में रेंज होगी, जो कि हम इस पोर्शन के बाद में हम उस प्लॉट को सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपने x की वैल्यू 0 रखी है, तो 0 इंटू एन सी 0, p की पावर 0, q की पावर n माइनस 0। देखिए गाइस, ये पहली टर्म आ गई। फिर दूसरी टर्म लिखी। अपने को याद रखना है कि पहले 3 टर्म जरूर लिखना है और उसके बाद कि n टर्म हमें लिखना है। तो n बराबर 0 से हम n तक जा रहे हैं, तो n टर्म्स के लिए हम समझ रहे हैं कैलकुलेशन एंड सॉन्ग, फिर करके हम लोग इंफिनिटी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। फिर तो ये पहली टर्म n बराबर x बराबर 0 के लिए, ये दूसरी टर्म x बराबर 1 के लिए, 2 के लिए और डॉट 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 करते हुए n तक के लिए। अब इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है बेटे, बस ये इसका जो मेन रोल है यहां पर खत्म हो गया। जो नई टेक्निक्स है, जो नई बात है वो आपकी पूरी खत्म हो गई। अब बस इसका कैलकुलेशन बचा है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें। जैसे अपन कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। बोले क्या मैनिपुलेशन करते हैं, क्या शब्द यूज करना चाहते हैं, वो शब्द आप लोग यूज कर सकते हैं। ओपन करना है मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लेना है। तो हमने अभी पहले सिंप्लीफाई करके लिखा है आपके सामने, और फिर इसके बाद हम इसको कॉमन लेके बताएंगे आपके सामने नेक्स्ट स्टेप में। वो कॉमन है एनपी। एनपी सब जगह कॉमन आ रहा है तो एनपी लिख दिया है। अब इसके बाद जब आप इसमें से एनपी कॉमन लेंगे, बोलिए कर्तव्य तुम्हारा अटेंडेंस हो गया है बेटे। एडमिट करते समय ही मैं मार्क कर लेता हूं आपकी अटेंडेंस। ओके गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने एनपी कॉमन लिया आपके सामने। देखते जाइए, हर टर्म में से एनपी कॉमन लिया है तो पहली टर्म में आपके पास q की पावर n-1 बचेगा। यहां पर आपके सामने n-1 बचेगा। p, एक p को कॉमन ले लिया तो एक p अंदर बचेगा, और यहाँ पर n-2 है तो आपके सामने q तो अपन ने कॉमन लिया नहीं क्योंकि प्रत्येक टर्म में नहीं आ रहा, इसलिए अपन ने nq को कॉमन ले लिया है, q को कॉमन ले लिया है क्योंकि लास्ट टर्म में q नहीं आ रहा है, इसलिए ठीक है, गड़बड़ी हो जाएगी। इसलिए q कॉमन आएगा तभी लेंगे, जो चीज कॉमन होगी उसी को लिया आता है कॉमन, इसलिए उसका नाम होता है कॉमन। नेक्स्ट स्टेप पे आ रहे हैं हम लोग। अब बहुत ध्यान देने की बात है ये जो आपके सामने ब्रैकेट में एक्सप्रेशन बन रहा है, ये एक्सप्रेशन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक बाइनोमियल एक्सपांशन है जिसका फर्स्ट टर्म a की जगह q है और b की जगह p है, तो q प्लस p की पावर n। अब चूंकि यहाँ पर ये जो पावर आ रही है सबसे हाईएस्ट पावर है n-1 आ रही है, इसलिए यहाँ पर जो पावर आएगी बाइनोमियल एक्सपांशन की वो n की जगह n-1 आएगी। तो दिस इज द बाइनोमियल थ्योरम जिसको आप लोग a प्लस बी की पावर n बोलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला सभी को याद है, a प्लस बी की पावर n इक्वल टू, जो मैंने अभी आपके सामने पिछली स्लाइड में अप्लाई किया है, इसी को हमने इन टर्म्स के लिए, इन वैल्यूज के लिए यहां पर कर दिया है। अब इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आ जाएगा।
इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप यह आ जाएगा कि P प्लस Q की वैल्यू, ये इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी। Q का मतलब फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी और P का मतलब होने की प्रोबेबिलिटी। दोनों का सम कितना होता है? 1 होता है। तो 1 की पावर n-1 मतलब 1 ही आएगा। तो आपका जो मीन का बेसिक फार्मूला आ जाएगा वो NP हो जाएगा, NP इंटू 1। NP Therefore mean equal to mu equal to, जिसको mu से डिनोट करते हैं n इंटू P इंटू 1 मीन्स NP। अब इसके बाद आप सभी लोग वेरिएंस के लिए कैलकुलेशन करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन माइनस फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन का होल स्क्वायर। मोमेंट मतलब वेरिएशन फ्रॉम देयर ओरिजिन, जिसको हम मैथमेटिकली आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड में डिफाइन कर रहे हैं। ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है समेशन एक्स स्क्वायर। पहले मीन का फॉर्मूला में एक्स आता है, इसमें एक्स स्क्वायर आता है। पी ऑफ एक्स मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन माइनस म्यू का स्क्वायर, मतलब जो वेरिएंस लेना है वो हमें मीन से डिफरेंस लेके करना है। तो माइनस ऑफ मीन का स्क्वायर। अब हमें कुछ नहीं करना है, जैसे अभी हमने मीन का कैलकुलेशन किया था, रिस्पेक्टिव वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था, वही की वही यहाँ पर रखेंगे। म्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, उसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू वो यहाँ रखेंगे और फिर समेशन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद सॉल्व करेंगे और फिर कॉमन चीज कॉमन लेंगे। ये रहा आपके सामने कैलकुलेशन। फिर इसके बाद ये जो होता है एनसीआर होता है कॉम्बिनेशन, जिसको अपन ने यहाँ पर ओपन करके लिख दिया है। और फिर इसके बाद हमने पहले टर्म में से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लिया है, क्योंकि सेकंड टर्म सेपरेट है, एन स्क्वायर पी स्क्वायर, ये सेकंड टर्म है, पहली टर्म आपकी ये है। तो पहली टर्म को ओपन किया बाइनोमियल एक्सपेंशन से और फिर इसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया। ये आपका सेकंड टर्म एज इट इज रहा है, पूरा डिटेल्स में बता रखा है आपको मैंने। अब इसमें एक बात ये हो रही है कि जो आपका इसकी प्लेले साइड में जो यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन बन रहा है वो पहले फर्स्ट एन टर्म्स को लेके बन रहा है। तो बाकी टर्म्स आपके एज इट इज लिखिए और फिर इसके बाद की लास्ट टर्म को एज इट इज लिखा है। इसकी वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर n-1 1 होता है, 1 प्लस n-1। यहाँ पर भी ये आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन बन गया है जिसमें पावर n-2 आ रही है, क्योंकि हमें मालूम है कि फेल्यूर और प्रोबेबिलिटी दोनों का सम 1 होता है, तो इससे भी ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपके पास आ जाएगा एक्सप्रेशन n-1 इंटू पी, इसकी वैल्यू 1, यहाँ पर इसकी भी वैल्यू 1 होगी तो 1 प्लस पी, जिसको अपन फिर ओपन कर देंगे और इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट स्टेप में एनपी का अंदर गुणा कर दिया तो एनपी प्लस एनपी स्क्वायर एन स्क्वायर पी स्क्वायर और माइनस पी आएगा तो माइनस पी, तो एन पी का इससे गुणा होगा तो जाएगा माइनस एन पी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर पी स्क्वायर। तो पहले से चले आ रहा है और अभी इसके बाद ये आपस में कट जाएंगे। एन स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस का है तो माइनस से कट जाएगा, तो आपका बैलेंस बचेगा एनपी माइनस एनपी स्क्वायर। और इसको आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। जो ये आपकी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बचेगी, इसमें से आपका एनपी कॉमन आएगा तो ये आएगा आपका 1 माइनस पी। ऐसा क्यों किया? ताकि आप 1 माइनस पी की वैल्यू शॉर्ट फॉर्म में क्यू लिख सकते हैं। तो इसलिए आपका वेरिएंस का फॉर्मूला आ जाएगा, वेरिएंस आ जाएगा एनपी क्यू। मतलब कहने का वेरिएंस का फॉर्मूला और मीन के फॉर्मूले में क्या अंतर है? इसमें फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी का भी गुणा हो जाता है। जब अपन मीन में फेल्यूर की प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेरिएंस हो जाता है। इस तरह से हाँ बोलिए श्रेयांश। सर डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है ना एग्जाम, मतलब क्वेश्चन। हाँ, यदि डेरिवेशन पूछा जाएगा तभी आपको बेटे इस तरह से ये डेरिवेशन करना है। यदि प्रॉब्लम में आपको जब अपन करेंगे तो डायरेक्ट अप्लाई करना है फॉर्मूला। अभी मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल्स बता रहा हूँ। नेक्स्ट
स्लाइड में ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बहुत कॉमन रैंडम एक्सपेरिमेंट का प्रॉब्लम है। 6 dice are thrown 729 times. How many times do you expect at least 3 dice to show a 5 or 6? आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर आपकी सिंपल जो प्रोबेबिलिटी की थ्योरी होती है क्या उससे दे सकते हैं? आपका आंसर होगा नो। कुछ लोग सोचेंगे, जिन लोगों ने सोच लिया है, इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है। ऐसे प्रॉब्लम को हम इस मेथड से सॉल्व करेंगे। आपके सामने एक ऑब्जर्वेशन आपको करना है 729 टाइम्स। एक बार, दो बार होता, 3 बार होता तो चल जाती बात, ये हमें एक 729 बार करना है बेटे। और एक डाई नहीं है हमारे सामने, 6 डाई है, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है उसको समझ लीजिए। कुछ सेकंड का टाइम बचा है। वी नो दैट व्हेन ए डाई इज थ्रोन देन द प्रोबेबिलिटी टू शो ए 5 और 6, आप जानते हैं सभी लोग, डाई पर या तो 5 लिखा होता है या 6 लिखा होता है। दोनों की संभावना आपके सामने, चूंकि 2 है तो इसलिए ऊपर फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2 और टोटल आउटकम्स आपके 6 हो गए। तो आपके सामने बैलेंस आया। इसको सॉल्व करने के बाद 2 3 6 होता है 1/3, जिसको अपन पी से डिनोट करते हैं। हमें फेल्योर की प्रोबेबिलिटी की भी जरूरत होती है, तो इसलिए इसको 1 में से घटा देंगे तो यह फेल्योर की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1 - 1/3, जिसकी वैल्यू होगी 2/3। Therefore, the probability to show 5 or 6 in at least 3 dice, summation x equal to 3 से 6, p of x equal to p of 3 plus p of 4, इस summation को अपन ओपन करेंगे p of 5 plus p of 6, where p of x is the probability to show 5 or 6, जिसका हम ओपन करेंगे प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अभी आपको मैंने जो बताया था उसी फॉर्मूले से इसको ओपन किया गया है। ओके, 6c3 इंटू क्यू ऑफ q की पावर 3, ये q जो है मल्टीप्लाई में है p की पावर 3 और q की पावर में आता है 6 - 3 की पावर हो जाएगी 3। फिर इसके बाद नेक्स्ट आएगा 6p(c4) आएगा, क्योंकि 4 सिलेक्शन की बात चल रही है तो p की घात 4 जो भी सफिक्स में होता है 4 होता है, q की पावर में इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो 6 - 4 करेंगे तो 2 आएगा। फिर 6c5 आएगा, 6p5 p की पावर 5 और q की पावर आपकी हो जाएगी 6 में से 5 गया, 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। और फिर 6c6 की वैल्यू होगी आपके सामने p की पावर 6 और q की पावर होगी 6 - 6, q की पावर 0 1 हो जाएगी। आप सभी लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो वैल्यू आपके पास p की मालूम है वो p की वैल्यू रखेंगे और जहां पर q की वैल्यू आपको जरूरत है वहां q की वैल्यू रखेंगे और जितनी पावर है उसका उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर से सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपके सामने ये जो आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 233/729 equal to p, so that the required number is n into p। so n into p में p में आपके सामने सिंगल ट्रायल की प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 729 टाइम्स है तो 729 से 729 कट जाएगा, आपके पास आंसर आएगा 233। सर हाँ बोलिए, सर ये एक स्टेप समझ नहीं आई। कौन सी वाली? सर ये सबमिशन x इक्वल्स टू 3 से लेकर 6 वाली स्टेप जो इसमें क्या कर रहे हैं? ये देखिए बेटे, आपको क्या पूछा था इसमें? the probability to show a 5 or 6 in at least 3 dice, am I right? यस सर। How many times do you accept at least 3 dice, okay, to show 5 or 6, am I right? तो हमें 5 या 6 शो करने का एटलीस्ट 3 बार, 3 डाई के लिए हमें वो प्रोबेबिलिटी पहले हमें निकालेंगे, तभी हम उसमें आपके सामने जब एक बार की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी तो उसको अपन कितने बार आपको करना है? 729 टाइम्स। 729 टाइम्स से आप जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वो फिगर मिल जाएगा कि जो आपसे एग्जामिनर कर रहा है कितने बार, हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सेप्ट एटलीस्ट, एक्सेप्ट का मतलब संभावना,